My dear children, today we will read lesson 4, My Lion Friends. This story is about the 4 lions, which is our national emblem and that we see on rupees and coins daily. The 4 lions is called Lions Capital, that was built by Emperor Ashoka, the great Indian king. So we will read the story and try to find out all about it. But before going into the story, let me tell you that this story is about these lions. You can see here 3 lions, but actually there are 4 lions, one behind this line. And all these 4 lions, they are facing the 4 directions. And these lions, they are called Lions Capital, and this is our national emblem. As we have our national animal, national bird, national flower, national anthem, national song, so we also have our national emblem, and these 4 lions, it is our national emblem. And this picture, these 4 lions, you can find them in our Indian rupee notes and coins. So now let us go back to the story. So here we go. Lesson 4, My Lion Friends. Warm up. Match these famous buildings with their names. Here are some pictures of famous buildings and their names are written here. 1, 2, 3, 4. We have to match the pictures with the names. You see, first one is the Taj Mahal. So Taj Mahal is number 2. So we will write here number 2. Then second one is India Gate. India Gate is number 4. So we will write here number 4. Then the next one is Golden Temple in Amritsar. So Golden Temple is number 1. We will write here number 1. And last one is Sanchi Stupa. 3. Sanchi Stupa is in Madhya Pradesh near Bhopal, the capital city. So that we have done. Now let us read the story. Reading. The 3 lions looked at me with bright eyes and shook their manes. The 4th lion was facing the wall, so I couldn't see him, but I could hear him. All the lions sat on a stone drum with a wheel or a chakra and animals carved on it. I could see a horse, an ox, an elephant and a lion. Under them was a stone lotus. It was placed upside down. My parents and I were at the Sarnath Museum near Varanasi, Uttar Pradesh. I saw that 4 lions sat on a pedestal. They were all facing the 4 directions. I could not take my eyes off them. I had seen pictures of lions on rupees and coins and the chakra on our flag, but I had never actually seen the figures, and I didn't know that lions could talk. Yes, talk. The lion facing me said, "We are called the Lion Capital." Capital means the top part of a pillar. We were made to be the head of a pillar. You can see the
pillar still standing in Sarnath. Now we live in this museum, said the lion facing left. These pillars were put up by King Ashoka, an Indian emperor. The pillars were nearly 50 feet tall and built all over India, said the lion on the right. King Ashoka got rules written on these pillars. These rules were about leading a good life, he said. Why did he do that? I asked. So that people could read the rules easily, follow the rules, and be happy, said the lion, whose face I could not see. But why are the four of you and the chakra seen on rupees and the flag? You see, since Ashoka was a great emperor, people still follow his rules for a good life and it makes them happy. So his lion capital and the chakra became the national emblems of India, explained the first line. What is an emblem? I wanted to know. Well, said the lion on the right, scratching his mane, it is a picture or a thing that is a symbol for a country. Oh, like the Olympic rings stand for the Olympic Games. Yes, yes, said all four lions together. At that moment, my elder sister came up to me. I turned to the lions, and this is my sister, Megha, but the lions were now silent. Are you talking to the lion capital, Mohit? My sister asked. Yes, we were chatting, I said and looked at the lions. Then I looked hard. Their eyes were not shining anymore. Their manes were not shaking. They had turned into stone lions. What had happened to my lion friends? I only heard Megha laughing. Paramita Mitra, written by Paramita Mitra. You can see the meaning of the new words. Man, hair on a lion's neck, जो शेर का गला में या माथा के ऊपर जो बाल होता है, चूल होता है, उसको बोलता है मैन. Symbol means a design or figure which is used as an identification mark. जो पहचान के लिए हम लोग यूज़ करता है उसको हम लोग बोलता है सिंबल. ओलंपिक रिंग्स, 5 linked rings that are sign of the Olympic Games. जो ओलंपिक रिंग्स है, जो ये 1 2 3 4 5 ये रिंग्स है जो ओलंपिक गेम्स का जो पहचान है उसको ओलंपिक रिंग्स बोलते हैं. ओलंपिक गेम्स क्या है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट हेल्ड वंस इन 4 years. तो पूरा दुनिया भर का खिलाड़ी जब हर 4 साल के बाद में अलग अलग गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कंपटीशन करता है उसको बोलता है ओलंपिक गेम्स. साइलेंट मीन्स चुप हो जाना, क्वाइट. तो यहाँ में भी कुछ वर्ड्स है दिया. फिगर्स मीन्स स्मॉल स्टैचूज, छोटा छोटा मूर्ति है उसको फिगर्स बोलते हैं. पिलर मीन्स टॉल स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ स्टोन, वुड और आयरन. पिलर का मतलब है खंबा. आप लोग यहाँ में देख सकते हैं ये खंबा. एम्परर का मतलब होता है किंग. और यहाँ में और एक वर्ड है म्यूजियम. म्यूजियम का मतलब होता है जहाँ में पुरानी चीज़ों को रखा जाता है, तो आने वाले जनरेशन्स को देखने देने के लिए, उन लोगों को पढ़ने देने के लिए, मालूम होने देने के लिए जो पुरानी चीज़ों को रखा जाता है, उस बिल्डिंग को बोलते हैं म्यूजियम. अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ कल्चरल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंटरेस्ट आर प्रिजर्व्ड एंड डिस्प्लेड. तो यह है म्यूजियम. तो होता क्या है, मोहित एक लड़का है, अपना परिवार का साथ में ये सारनाथ में जो म्यूजियम है, सारनाथ ये वाराणसी का नज़दीक में है, उत्तर प्रदेश में है. सारनाथ म्यूजियम को देखने जाता है अपना परिवार का साथ में, पेरेंट्स का साथ में. तब क्या होता है,
The three lions looked at me with bright eyes and shook their manes. तो म्यूजियम के अंदर जब मोहित अपना परिवार का साथ अंदर जाता है, देखने जाता है, तो वहाँ पर उसको 3 लायंस दिखाई देता है जिसकी आंखें बहुत चमक रहा होता है। और जो अपना ये जो मेंस मैं बताया था, ये जो मेंस है, जो लायन का गला में या सिर में जो बाल होता है, चूल होता है, हेयर होता है, उसको बोलता है मेंस। तो उसने देखा कि 3 लायन उसका तरफ में बहुत ब्राइट आइज से, चमकने वाला आंखों से उसको देख रहा है और अपना गला का चूल को हिला रहा है। द फोर्थ लाइन वॉज फेसिंग द वॉल। और जो चौथा लाइन क्योंकि पीछे में था, इसलिए उसको मोहित नहीं देख पा रहा था, वो वाल का तरफ फेस कर रहा था। द फोर्थ वॉल वॉज फेसिंग द वॉल, सो आई कुड नॉट सी हिम। इसलिए उसको मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं उसको सुन सकता था, उसका आवाज़ को मैं सुन सकता था। ऑल द लायन सेट ऑन अ स्टोन ड्रम विद अ व्हील और चक्र एंड एनिमल्स कार्व्ड ऑन इट। तो ये जो चारों लाइन्स हैं, ये लोग एक स्टेज जैसा, एक सपोर्ट, मतलब एक ड्रम का ऊपर में, ड्रम मीन्स एक गोल करके एक छोटा सा स्टेज का जैसे है, उसका ऊपर में रखा है। तो मैं यहाँ आप लोगों को पिक्चर में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है वो ड्रम, इसको बोलता है ड्रम, जिसका ऊपर ये चारों लाइन बैठ रहा है। तो ये लायंस लोग एक ऐसा ड्रम का ऊपर में बैठ रहा है, और उस ड्रम में क्या है, एक व्हील है और एक व्हील या चक्र है, और उसमें कुछ एनिमल्स का ड्राइंग बना गया है। तो आप लोग फिर से देखो यहाँ में पिक्चर में। तो ये ड्रम में क्या है कि ये है चक्र, ये देखो, ये व्हील गोल आप लोग को दिखाई दे, यहाँ लिखा भी है चक्र, और इसमें कुछ एनिमल्स का ड्राइंग बनाया गया है। यहाँ आप लोग बाद में किताब में आप लोग नज़दीक से अच्छे से दिखाई देगा, कुछ एनिमल्स का पिक्चर बनाया गया है। आई कुड सी अ हॉर्स। तो उसमें क्या क्या का पिक्चर बना हुआ था, हॉर्स का, एक ऑक्स बैल का, और एलिफेंट का पिक्चर है, और उसका अलावा एक लायन का भी पिक्चर है। तो उसका जो ड्रम में जो है, जिसका ऊपर उन लोग बैठा है, जिस सपोर्ट का ऊपर में ये 4 लायंस बैठा है, उस ड्रम में क्या है, एक व्हील का डिजाइन बनाया है, और उसमें कुछ एनिमल्स का भी कार्विंग्स है, एनिमल्स का भी डिजाइन बनाया है। और वो एनिमल्स है कौन सा है, हॉर्स, ऑक्स मीन्स बैल, एलिफेंट, और एक अलग लायन। अंदर देम वाज ए स्टोन लोटस। उसका नीचे में एक पत्थर से बनाया हुआ लोटस का, फिर से एक लोटस का एक फिगर बनाया है, पत्थर से बनाया हुआ। इट वाज प्लेस्ड अपसाइड डाउन। तो वो जो लोटस था वो उल्टा रखा हुआ था। लोटस जैसे नेचुरली खड़ा होता है, ऐसा नहीं होके उसको उल्टा रखा हुआ था। तो फिर से हम लोग पिक्चर को देखते हैं। तो ये देखो, ये लोटस जो है, ये है लोटस, ये लोटस जो है, ये देखो, ये लोटस उल्टा रखा हुआ है। तो ये पत्थर से लोटस बनाया हुआ है, और ये लोटस जो उल्टा रखा हुआ है। नेक्स्ट, माई पेरेंट्स एंड आई वेर एट द सारनाथ म्यूजियम नियर वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो ये बता रहा है कि हाँ, ये लड़का जो है, इसका नाम है मोहित। तो ये बता रहा है कि मैं अपना मम्मी पापा का साथ में सारनाथ म्यूजियम को देखने आया है, जो कि वाराणसी का नज़दीक में है और उत्तर प्रदेश में है। आई सो दैट 4 लायन सेट ऑन ए पेडेस्टल। और ये जो पेडेस्टल मतलब होता है एक बेस या सपोर्ट, मतलब जहाँ में जब मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति को रखने के लिए, उसको खड़ा होने के लिए जो नीचे में सपोर्ट देता है, उसको बोलता है पेडेस्टल। तो ये चारों लाइन्स जो एक पेडेस्टल का ऊपर में बैठा है। दे वेर ऑल फेसिंग द 4 डायरेक्शन। सो ये जो 4 लाइन्स है, चारों डायरेक्शन का तरफ पेश कर रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आई कुड नॉट टेक माई आइज ऑफ देम। और ये लाइन्स को देख के मोहित बोलता है कि मुझे ये
चार लाइंस को देख के उन लोगों को मेरे मतलब उसका ऊपर से मेरा नज़र नहीं हटा सक रहा है। उन लोगों को मेरा बार बार देखने का मन हो रहा है। तो ऐसा बोलता है। आई हैड सीन पिक्चर्स, वो बोलता है कि मैं इन चार लायंस का पिक्चर्स ऑफ द लायंस ऑन रुपीस एंड कॉइन्स इन द चक्रा ऑन फ्लैग। तो बोलता है कि मैंने ये चार लायंस का पिक्चर को मैंने हम लोगों का जो इंडियन रुपी है, देखो यहाँ पर इंडियन रुपी, हम लोगों का इंडियन रुपी में इस चार लायंस का मैंने पिक्चर देखा है। देखो आप लोग यहाँ देख सकता है, ये है चार लायंस का पिक्चर। आप लोग हम लोगों का इंडियन रुपी नोट है, चाहे वो 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 50 रुपया हो, 100 रुपया हो, 500 रुपया, सब में आप लोगों को ये जो लायन कैपिटल का आप लोगों को पिक्चर दिखाई देगा। तो मोहित भी बोलता है कि मैंने इन लायंस का पिक्चर्स को मैंने देखा है हम लोगों का इंडियन रुपीस में और कॉइन्स में। तो ये देखो ये कॉइन है, तो कॉइन में भी आप लोग अच्छे से देखने से जिसको दिखाई देगा। और जो आप लोग देखते हैं जब नेशनल फ्लैग में देखने से हम लोगों का नेशनल फ्लैग बीच में जो है वाइट कलर होता है, उसमें एक गोल करके जो व्हील जैसा चक्का जैसा है उसको अशोक चक्र बोला जाता है। वो जो मोहित बोलता है कि मैंने हम लोगों को नेशनल फ्लैग में उस चक्र को भी देखा है। तो वो भी जो नेशनल फ्लैग में जो चक्र है जो गोल करके है उसमें 24 स्पोक्स होता है, वो भी ये किंग अशोका द्वारा ही बनाया गया है। और ये अभी आप लोग यहाँ देखा था, इसमें ये जो चक्र है, ये जो गोल वाला चक्र है, इसको हम लोग का नेशनल फ्लैग में यूज़ किया गया है। इसको अशोक चक्र बोलते हैं क्योंकि ये राजा अशोक द्वारा बनाया गया था। बट आई हैड नेवर एक्चुअली सीन द फिगर्स। तो बोलता है कि मैंने इन लोगों का पिक्चर तो पैसा का ऊपर में देखा है, और जो चक्र है, व्हील है, उसको मैंने नेशनल फ्लैग में देखा है, लेकिन आज तक मैंने उन लोगों का असली मूर्ति नहीं देखा है। ये जो मूर्ति है, असली जो मूर्ति स्टैचू है, उन लोगों का मैंने आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहले कभी नहीं देखा था। पहले जो मैं देखा वो उन लोगों को पिक्चर देखा है ऑन रुपीस एंड नोट्स, कॉइन्स एंड इन द नेशनल फ्लैग, एंड आई डिड नॉट नो दैट लायंस को टॉक। तो बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि ये लायंस लोग बोल भी सकता है। हाँ, वो बोलता है यस टॉक, हाँ उन लोग बात कर सकता है। ये चार लायंस बात करता है मेरा साथ। ये बच्चा का इमेजिनेशन है, रियलिटी में लोग तो मूर्ति बात नहीं करेगा। उन लोग तो पत्थर का मूर्ति है, पत्थर का लायन है, तो उन लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन बच्चा जो है मोहित जो इमेजिन करके ऐसा सोच रहा है कि हमारा साथ में ये चार लायंस बात कर रहा है। तो कैसा बात करता है देखो। द लायन फेसिंग मी सेड वी आर कॉल्ड द लायन कैपिटल। जो लायन उसका तरफ में फेस कर रहा था। अभी ये देखो, ये लायन लोग जो है, एक जो ये लायन जो मोहित को फेस कर रहा है, और ये वाला लायन तो उस तरफ देख रहा है, ये यहाँ देख रहा है, पीछे वाला तो पीछे तरफ देख रहा है। जो लायन मोहित को देख रहा है, ये लायन क्या बोलता है देखो। वी आर कॉल्ड लायन कैपिटल, बोलता है कि हम लोगों को लायन कैपिटल कहा जाता है। हम लोग जो चार लायन है, हम लोगों को क्या कहा जाता है, द लायन कैपिटल। कैपिटल मीन्स द टॉप पार्ट ऑफ अ पिलर। तो बोलता है कि कैपिटल का मतलब होता है जो भी किसी भी पिलर का सबसे ऊंचा वाला भाग को बोलता है। अभी ये देखो, ये एक पिलर है, खंभा है, तो इसके ऊपर में ये सबसे जो ऊपर वाला पार्ट को कैपिटल बोला जाता है। अभी देखो इसी पिक्चर में देखो, ये जो पिलर है ये तो और भी नीचे में और नीचे जाएगा, ऊंचा वाला पिलर है। देखो ये इस पिलर का ये सबसे ऊंचा पार्ट है, ये 4 लायंस, इसलिए उन लोगों को बोलता है लायन कैपिटल। तो लायन कैपिटल का मतलब होता है द टॉप पार्ट ऑफ अ पिलर। सब किसी भी खंभा का पिलर का सबसे ऊंचा वाला पार्ट को कैपिटल बोलता है। वी वेर मेड टू बी द हेड ऑफ ए पिलर। तो हम लोगों को पिलर बनाया गया है, पिलर का सबसे ऊंचा वाला पार्ट
बनाया गया है, पिलर का सबसे ऊंचा वाला पार्ट बनाया गया है। यू कैन सी द पिलर स्टिल स्टैंडिंग इन सारनाथ। तो ये जो पिलर है इसको अशोका पिलर बोलता है, और ये पिलर अभी भी सारनाथ में अभी भी खड़ा है, ऐसा बता रहा है। नाउ वी लिव इन दिस म्यूजियम। तो बता रहा है कि अभी हम लोगों को जो पिलर तो सारनाथ में अभी भी खड़ा है, लेकिन पिलर का जो कैपिटल है, हम लोग जो पिलर का सबसे ऊंचा पार्ट जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूट करता था, हम लोगों को उतार के इस म्यूजियम में रख दिया है, लेकिन वो जो पिलर है वो अभी भी सारनाथ में खड़ा है, बता रहा है। सेड द लायन फेसिंग लेफ्ट। और ये कौन बोला है? जो लायन इस तरफ में देख रहा था, लेफ्ट तरफ में देख रहा था, वो बोलता है। देन नेक्स्ट, these pillars were put up by King Ashoka and Indian Emperor। तो ये पिलर जो था अभी मैंने बताया, ये पिलर, इस पिलर को अशोका पिलर अभी हम लोग बोलते हैं। इस पिलर को किसने बनाया था, किसने लगाया था? दिस पिलर्स वेर पुट अप बाय किंग अशोका एंड इंडियन एम्परर। तो उन्होंने बताया कि इस पिलर को खड़ा करने वाला राजा अशोका था, जो कि एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का राजा था। द पिलर्स वेर नियरली 50 फीट टॉल एंड बिल्ट ऑल ओवर इंडिया। तो बताता है कि पिलर का जो ऊंचाई है वो 50 फीट है, और ऐसा पिलर, सिमिलर पिलर ऐसा बना के, इसका जिसे बना के पहले सारनाथ में बना के लगाया, उसके बाद में इसी तरह का पिलर ऑल ओवर इंडिया बाद में दूसरा जगह में भी पूरा लगा दिया। सेट द लायन ऑन द राइट। ये कौन बोला है? जो लायन राइट डायरेक्शन में देख रहा है वो बोला। King Ashoka got rules written on these pillars. These rules were about leading a good life, he said। और वो लाइन बताया कि राजा अशोका ने इन खंभों पर, इन पिलर्स का ऊपर में कुछ रूल्स लिखा है, क्योंकि पहले ज़माने में किताब नहीं होता था, तो क्या क्या उन लोगों ने उस पिलर्स का ऊपर में रूल को लिख दिया। और रूल्स क्या के लिए था? द रूल्स वेर अबाउट लीडिंग अ गुड लाइफ। और ये रूल्स था अच्छा जीवन जीने के लिए। अच्छा जीवन कैसा जिया जाएगा उसको बताते हुए वो रूल्स को पिलर्स का ऊपर में लिखा गया है। वाई डिड ही डू दैट? तो मोहित ने पूछा है, मोहित ने उन लायंस को पूछा है उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो नेक्स्ट, so that people could read the rules easily, follow the rules and be happy, said the lion whose face I could not see। तो अभी जो है, जो लायन जिसको मोहित दिखाई नहीं दे रहा था, जो पीछे तरफ में था, वो लायन बोलता है कि ये रूल्स को इसलिए लिखा गया था ताकि आदमी लोग उस पिलर को देखें और रूल्स लोगों को आसानी से पढ़ सके और अच्छा जीवन जी सके। इसके लिए राजा ने पिलर्स का ऊपर में रूल को लिखा था। बट वाई आर द 4 of you on the चक्रा सीन ऑन रुपीस एंड द फ्लैग? तो पूछता है मोहित फिर, तो तुम लोग जो ये नेशनल फ्लैग में चक्र दिखाई देता है और तुम 4 लायन लोग क्यों हम लोगों का पैसा का नोट में है या कॉइन्स में क्यों दिखाई देता है, और ये नेशनल फ्लैग में हम लोगों का नेशनल फ्लैग में क्यों तुम लोग दिखाई देता है, तुम लोग क्यों नज़र आता है, ऐसा पूछता है। यू सी, सिंस अशोका वाज अ ग्रेट एम्परर, पीपल स्टिल फॉलो हिज रूल्स फॉर अ गुड लाइफ एंड इट मेक्स देम हैप्पी। तो बोलते देखो, क्योंकि अशोका जो एक बहुत बड़ा राजा था और अभी भी उनका जो कहा गया बात को अभी तक, उसका जो रूल्स को अभी तक आज का आदमी लोग भी उसका रूल्स को फॉलो करता है अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए। और अच्छी ज़िंदगी उस रूल्स को फॉलो करने से उन लोगों जो ज़िंदगी है वो मतलब हैप्पी हो जाता है। सो हिज लायन कैपिटल एंड चक्रा बिकेम द नेशनल एम्बलेम्स ऑफ इंडिया। तो बताता है कि इसलिए उनका द्वारा बनाया गया वाला जो लायन कैपिटल और जो चक्र है वो हम लोगों का नेशनल एम्बलम बन गया, इंडिया का नेशनल एम्बलम बन गया। एक्सप्लेन द फर्स्ट लाइन, जो पहला वाला लायन है वो उसने बताया। तो फिर पूछता है व्हाट इज एन एम्बलम? तो फिर मोहित पूछता है
ये एम्बलम क्या होता है। तो वो बताते हैं कि वेल सेड द लायन ऑन द राइट स्क्रैचिंग हिज मैन। तो जो लायन राइट तरफ में देख रहा था उसने अपना, मैंने बताया जो पीछे का जो गला का पीछे में या माथा में जो बाल होता है, चूल होता है, हेयर होता है, उसको खुजलाते हुए, खुजली करते हुए उसने बताया कि एम्बलम क्या होता है। इट इज़ अ पिक्चर और अ थिंग दैट इज़ अ सिंबल फॉर ए कंट्री। तो बताता है कि एम्बलम वो होता है, एम्बलम कोई पिक्चर होता है या कोई चीज़ होता है जो एक देश का निशान होता है, देश का एक पहचान होता है, देश का एक चिन्ह होता है, उसको बोलता है एम्बलम। ओह लाइक द ओलंपिक रिंग्स स्टैंड फॉर द ओलंपिक गेम्स। तो मोहित बोलता है हाँ अच्छा, तब तो ये ऐसा ही है जैसे कि ओलंपिक रिंग्स ओलंपिक गेम्स को रिप्रेजेंट करता है, ओलंपिक गेम्स का जैसे ओलंपिक रिंग सिंबल है, ऐसा ही ये जो ये एम्बलम जो हम लोगों का इंडिया का या किसी देश का सिंबल है, ऐसा पूछता है। यस यस सेड ऑल फोर लायंस टुगेदर। तो उन्होंने बोला क्या हाँ हाँ यही है, ऐसा ही है एग्जैक्टली, ऐसा ऐसा चारों लायंस लोग ने मिलके बोला। At that moment, my elder sister came up to me. I turned to the lions and this is my sister Megha, but the lions were now silent. तो उसी समय उसका जो मोहित का जो बड़ी बहन दीदी है वह वहाँ आती है और मोहित लायन लोगों को बताता है कि ये मेरा, बताने की कोशिश करता है कि इंट्रोड्यूस करता है कि ये मेरा बहन है और इसका नाम है मेघा। तो ऐसा बोल के लायन का तरफ में जैसे उसने देखा तो क्या हो गया, लायन लोग जो अभी तक जो मोहित का साथ में बात कर रहा था उन लोग क्या हो गया, चुप हो गया। आर यू टॉकिंग टू द लायन कैपिटल मोहित, माई सिस्टर आस्क्ड। तो उसका जो बहन है मोहित से पूछते हैं क्या तुम इन लायंस का साथ में बात कर रहा है, इन लायन का जो स्टेचू है, मूर्ति है, उसका साथ में बात कर रहा है, ऐसा पूछता है। Yes, we were chatting, I said and looked at the lions. Then I looked hard. तो बोलते हैं हाँ हम इन लोगों का साथ में चैटिंग कर रहा था, बातचीत कर रहा था, ऐसा बोल के वो लायन को तरफ में देखता है। लेकिन लायन लोग क्या हो गया, चुप हो गया। तो फिर से उसको अच्छी तरह से देखने की कोशिश करता है कि लायन लोग अभी मैं क्यों कुछ भी हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्यों बात नहीं कर रहा बोल के उसका तरफ में गौर से देखने की कोशिश करता है। लेकिन लायन लोग चुप हो गया। देयर आइज वेयर नॉट शाइनिंग एनी मोर। अभी उन लोगों का आँख पहले चमक नहीं रहा है। देयर मेन्स वेयर नॉट शेकिंग। और उसका जो गला में, माथा में जो चूल है, हेयर है, वो भी हिल नहीं रहा है, पहले जैसा हिल रहा था। दे हैड टर्न इनटू स्टोन लायंस। और अभी वो लोग एक पत्थर का शेर बन गया है। व्हाट हैपेंड टू माई लायन फ्रेंड्स। मेरा लायन दोस्त लोगों का साथ क्या हो गया, ये तो अभी तक कितना अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन जैसे मेरा सिस्टर में यहाँ पर आई तो उसके बाद में ये लोग चुप हो गया, कुछ अभी बोलना भी बंद हो गया। आई ओनली हर्ड मेगा लाफिंग। तो देखता है तो सिर्फ मेगा जो उसका सिस्टर जो मोहित का बात को सुन के वहाँ पे खड़े होके हंस रही थी, उसका हंसने का आवाज़ को सिर्फ सुनाई दे रहा है। और लायन लोग अभी चुपचाप हो गया। लायन लोग कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना बातचीत कर रहा है, सिर्फ उसका बहन का हंसने का आवाज़ सुन रहा है। तो बहन इसलिए हंस रहा है कि क्योंकि उसको वो समझ रहा है कि ये पत्थर का शेर लोग का साथ में, मूर्ति का साथ में मेरा भाई कैसा बात कर रहा है बोल के, ये पागल हो गया क्या बोल के उसका, इसलिए वो उसका जो बहन है वो हंस रहे थे। So this was all about this lesson. Alright, now let us do the exercises. Use the words in the box to label parts of the emblem. One is done for you. These are the words, and using these words we have to label the parts of this emblem. Stone drum, lions, chakra, horse, ox, lotus flower. You see, the chakra is already done for you. Then stone drum, this part is the stone drum. You see here, this is why stone drum is written here. Lions, they are the lions. Then chakra is already done. Horse, this is the horse. It is not visible properly. Then
Then next is ox, and ox is this side, this picture, lotus flower. This is the lotus flower. That is how we have to do it. Then next, exercise B, complete these sentences with words from the story. You see, number 1, Mohit went to visit the Sarnath museum near Varanasi with his family. Number 2, he saw 4 lions inside a glass case. They faced 4 different directions. Number 3, the pillars were put up by Emperor Ashoka. The emperor got some rules written on the pillars. 5, these rules were about leading a good life. Then exercise C, answer these questions that I will send you in the WhatsApp group. Vocabulary, you see, read these words: friend, priest, field, ceiling, receive, receipt. Some words in this list have IE and some have EI. Did you notice anything else about the words with EI? तो आप लोग को दिखा यहाँ में जो वर्ड्स है, इसमें कहीं पर IE है और कहीं पर EI है. See that the letter C comes before EI. Always remember that we use EI in a word if it comes after C. For all other letters we use IA. तो जहाँ पर हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग IE लगेगा ना EI लगेगा, तो इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है, जब भी हम लोगों को EI या IE लगाने से पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों का उसमें उससे पहले C आता है, लेटर C आता है, तो हम लोगों को हमेशा EI यूज़ करना है. देखो C आया है तो EI लगाया है, यहाँ में भी C है तो EI लगाया है, यहाँ में भी C है तो EI लगाया है. लेकिन यहाँ में C नहीं है, IE हो गया. यहाँ में भी C नहीं है, IE हो गया. यहाँ में भी C नहीं है, IE हो गया. जहाँ में C पहले आ जाता है तो उसका पीछे में हम लोगों को EI लगाना है. तो ये है IE और EI का रूल. नाउ follow the rule given above and tick write the correct spelling. देखो, चीफ का स्पेलिंग ये करेक्ट है, CHIEF, क्योंकि यहाँ में तो H है, C नहीं है. डेसिट का स्पेलिंग देखो, क्योंकि यहाँ में C आया है तो IAT, ये वाला करेक्ट है, ये करेक्ट होगा. अचीव में तो यहाँ पर H है, C नहीं है, तो ये IE आएगा. देन शील्ड, तो यहाँ शील्ड में भी इसमें C नहीं है, तो इसलिए ये IE वाला आएगा. देन कंसीट में आप लोग देखो यहाँ पर C है, तो इसलिए EI वाला को राइट. ब्रीफ में तो C दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये वाला IE. देन फोनिक्स में शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड ऑफ O. लिसन एंड से दीज वर्ड्स अलाउड. पे अटेंशन टू द शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड ऑफ O. डबल O मीन्स, डबल O होने से भी क्या होता है, कहीं पे हम लोग उसको साउंड को हम लोग शॉर्ट करता है, कहीं पे लॉन्ग करता है. तो जो वर्ड्स इस तरफ दिया गया है, इसको हम लोग उसका साउंड शॉर्ट होता है, इस तरफ में जो है वो है लॉन्ग. लेकिन दोनों में स्पेलिंग में डबल O है, फिर भी हम लोग इसको शॉर्ट में बोलता है और इसको लॉन्ग. देखो अभी हुक, वूल, टुक, बुक, वुड, गुड. अभी इसको देखो, पूल, जू, फूड, मून, रूफ, स्कूल. सो लाइक दिस. तो यहाँ पर एक टंग ट्विस्टर है. टंग ट्विस्टर मतलब जिसको हम लोग बोलने के लिए तकलीफ होता है, टंग ट्विस्टर. तो इसको अगर हम लोग जल्दी बोलने के लिए कोशिश करेंगे तो बोल नहीं पाएंगे. गुड कुक could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. तो ये जो है टंग ट्विस्टर है, इसको जल्दी बोलने की कोशिश करने से लड़कर आ जाएगा हमें. नाउ कम्स ग्रामर. तो ग्रामर आप लोगों को हम एक अलग सा वीडियो बना के भेजा है, ये सब प्रोनाउंस के बारे में है. तो हम डिटेल में अभी मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम लोगों को ग्रामर का जो टॉपिक है अलग से पढ़ाया हूँ. इसमें देखो, exercise A, complete the sentences under the pictures with the pronouns in the box below.
देर इज एन एक्स्ट्रा प्रोनाउन इन द बॉक्स। तो देखो यहाँ में 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ पिक्चर क्या है 1 2 3 4 है, तो यहाँ में एक एक्स्ट्रा है। तो जो एक एक्स्ट्रा हम लोगों को छोड़ना है, तो इसको यूज़ करके हम लोगों को यहाँ पे प्रोनाउंस को, ये सब प्रोनाउंस है, इसको यूज़ करके यहाँ में हम लोगों को भरना है। तो ये लड़की बोल रही है कि लाइक टू प्ले विद टॉयज। तो वो जो ये लड़की जब बोल रहा है अकेली है तो क्या होगा, आई। सिंगल है इसलिए सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आई लाइक टू प्ले विद टॉयज। तो अभी फिर ये लड़की यहाँ आ गया, लेकिन साथ में दोस्त हो गया, ज़्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, वी प्ले टुगेदर। ठीक है, तो ये आई आया, वी आया है। उसके बाद में ये दो बच्चे फुटबॉल खेल रहा है, तो कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए क्या होगा, ये एक होने से ही होना था, या एक लड़के होने से शी होना था, लेकिन यहाँ दो है तो ज़्यादा हो गया, प्लूरल हो गया। क्या यूज़ करेगा हम लोग, दे। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दे आर फ्रेंड्स। तो यहाँ में भी दो एनिमल्स है, तो यहाँ में भी प्लूरल ही यूज़ करेगा। और यहाँ में दूर में है तो ये भी बोलेगा दे आर फ्रेंड टू, तो यहाँ में भी दे आएगा। तो इसमें क्या छोड़ना पड़ गया हम लोगों को, ये शी और यू को छोड़ना पड़ गया। देन नेक्स्ट, तो ये सब पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, ये इस तरह, ये जो है आई वी, ये हम लोग का नॉमिनेटिव केस में है, और मी और अस ये ऑब्जेक्टिव केस में। इसको कैसा बनता है मैंने आप लोगों को बताया। ही और दे ये नॉमिनेटिव केस है, हिम और देम ये ऑब्जेक्टिव केस है, शी जो है नॉमिनेटिव केस में, हर जो ऑब्जेक्टिव केस में है। इसको आप लोग अगर अभी भी नहीं समझा, उसे वीडियो को फिर 2 बार देखो, प्रोनाउंस का ऊपर में जो वीडियो है तो मालूम है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक। माई सिस्टर लिव्स इन दुबई, वी टॉक टू हर, क्योंकि ये टॉक जो है वर्ब है, तो वर्ब के बाद में हम लोग यूज़ करने से वो जो होगा ऑब्जेक्टिव केस में वाला होगा, तो हर होगा, शी नहीं होगा, क्योंकि शी तो हम लोग सब्जेक्ट में यूज़ करता है, इसलिए हर। आई हैव अ लिटिल ब्रदर, आई शेयर माई टॉयज विद हिम, यह में भी ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेगा हिम, ही नहीं। माई फादर इज अ शेफ मतलब खाना बनाने वाला, ही मेक्स एक्सलेंट फूड, दीज आर माई बुक्स, आई रीड देम एवरी डे, Sarah is my cousin, she is in class 2. Dhruv and Solem are naughty, I won't play with them. We went to Mumbai, my aunt also came with us. You must be tired, I will help you clean the room. Then next, fill in the blanks with pronouns that match the underlined nouns. तो यहाँ में जो ये वर्ड जहाँ में नाउन को अंडरलाइन किया गया है, उससे मिलने वाला यहाँ में हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। राहुल इज़ माई ब्रदर, तो आई एम टॉलर देन हिम, क्योंकि ये राहुल जो लड़का है तो हम लोग उसको हिम लगेगा। दिस इज़ माई आंट, माई अंकल ब्रॉट हर टू आवर हाउस। हेलो मानवी, विल यू प्ले विद मी? लुक एट दीज डॉग्स, वी फाउंड देम ऑन द स्ट्रीट। My friends will play hide and seek, you have to find them. My name is Shweta, please play with me. I love my sister, she loves me too. तो नेक्स्ट सेक्शन में इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं है। तो ये जो राइटिंग सेक्शन है इसमें, तो ये एक थैंक यू लेटर है, इसको आप लोग देखो कैसा थैंक यू लेटर लिखा गया है, तो इसका मुताबिक तो आप लोगों को पीछे में एक लिखना है। तो राइटिंग में क्या बोला गया, Read the thank you card below. Mohit has made this card for the lions in the story. तो म्यूजियम में लायंस को देखने के बाद में, अपना घर में जाने के बाद में उसने ये एक थैंक यू कार्ड बनाया लायंस लोगों को, उसका जो म्यूजियम में दोस्त बनाया, उसका से बातचीत किया, उसको थैंक यू बोल के एक कार्ड बनाया लायंस लोगों के लिए। Now in the space on the next page, make a thank you card for your parent, teacher or sister and say why you want to thank them. Draw and color your card to make it look pretty. तो अभी ये नेक्स्ट पेज में तुम लोगों को बोला गया है, ऐसा एक पेज दिया गया, उसमें तुम लोगों को इसी प्रकार का एक कार्ड बनाओ बोल रहा है। एक तरफ में पिक्चर, कुछ सुंदर पिक्चर बनाओ, और दूसरा तरफ में जैसे ये लिखा है, डियर फॉर लायंस, थैंक यू फॉर अ मैजिकल टाइम
Thanks also for telling me everything about our emblem. I really enjoyed the trip to the Sarnath Museum. Thank you so much for everything. With love, मोहित। तो ऐसा आप लोगों को अपना मम्मी पापा को या टीचर को या अपना बहन को एक थैंक यू कार्ड लिखना। तो जैसे मैंने ऐसे एग्जांपल तुम लोगों को एक यहाँ करके दिखाया। तो ये जो कार्ड था उसको मैंने 2 भाग किया। इस तरह में एक ऐसे फूल का ड्राइंग बनाया, तो यहाँ में लिखा है। तो ये एक एग्जांपल है, तुम लोगों को तुम लोग अपना हिसाब से बना सकता है। तो देखो मैंने लिखा, डियर पापा एंड मामा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, अ न्यू बाइसाइकिल। I always wish to have a bicycle to ride, which you have fulfilled. I am really happy for myself. Once again, thanks, Papa and Mama. Your loving son or daughter, XYZ। तो इसमें your loving son, अगर तुम लड़का है तो तुम लोग लिखो सन, और लड़की है तो डॉटर लिखो, दोनों को मत लिखो। फिर मैंने यहाँ में जो XYZ लिखा है इसमें तुम लोग अपना नाम लिखना है। तो लाइफ स्किल्स में, यू आर विजिटिंग अ प्लेस विथ योर पेरेंट्स। अपना पेरेंट्स का साथ तुम कहीं दूसरा जगह जा रहा है। योर पेरेंट्स हैव आस्क्ड यू टू स्टे विद देम एंड नॉट टू गो एनीवेयर बाय योरसेल्फ। और तुम लोगों को मम्मी पापा ने कहा है कि हमेशा उनके साथ रहना, कहीं और नहीं जाना है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड यू रियली वांट टू सी इट प्रॉपरली। और जिस जगह गया है वो बहुत सुंदर जगह है और तुम उसको देखना चाहता है। तो टिक राइट द थिंग्स यू विल डू एंड क्रॉस द थिंग्स यू विल नॉट। तो यहाँ पर कुछ डूस एंड डोंट्स दिया गया है। तो जो सही लगता है उसको टिक राइट करो, जो गलत लगता है उसको क्रॉस करो। तो देखो, टॉक टू स्ट्रेंजर्स। तो तुम कोई भी अजनबी आदमी का साथ बात कर सकता है ऐसा बोला है, तो ये गलत है। यू कैन नॉट डू दैट। जहाँ तहाँ किसी भी अजनबी का साथ में बात करना गलत है। देन स्टे विद योर फैमिली। तो हमेशा अपना फैमिली का साथ में रहो, ये सही है। तो इसको राइट कर दें। वॉक अवे क्वाइटली व्हेन नो वन इज वाचिंग। तो चुपचाप, कोई जब नहीं देख रहा तो चुपचाप कहीं निकल जाओ, ये भी गलत है। टेल योर पेरेंट्स वेयर यू वांट टू गो एंड आस्क देम टू टेक यू देयर। तो अपना मम्मी पापा को बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहता है और उन्हें कहो कि मुझे वहाँ ले जाए, ये सही है। देन मिसबिहेव बिकॉज योर पेरेंट्स डोंट अलाउ यू टू डू व्हाट यू वांट टू डू। तो तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हें मना करता है, तो तुम उनके साथ में मिसबिहेव करो, ये बोल रहे हैं। तो ये गलत है। ट्राई टू बी ए पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड एंजॉय व्हाट अदर्स आर डूइंग। तो किसी भी ग्रुप का उसको पार्ट बनने की कोशिश करो और उन लोगों का साथ में मिलजुल के जो उन लोग क्या करा है उसके साथ में उन लोगों का साथ में एंजॉय करो। तो ये सही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लेसन 4।